let me talk to you today about direct and indirect narration or speech, so that you are able to report or speak or write exactly what the other person is saying. So we have two manners to talk about somebody else's words, either to speak it directly or speak it indirectly. That's why we have two narration or speech modes. One is direct speech and the other is indirect speech. Now, why makes the how easier? Please make a comment and write my words. Naeem Khan says, why makes how easier? In both direct and indirect speech. Naeem Khan says, double quotes, you write two commas and then you close it, that why makes how easier, and double quotes closed, full stop. Now the same direct speech you can write in indirect speech as well. Naeem Khan says that why makes how easier, full stop. So here we don't have double quotes, but we add another word which is that. As it is present and definite tense, so then there is no change in the tense, and as it is also a kind of proverb or quotation or universal truth, so we do not change the tense. So I hope you got the message. Please make a comment. Naeem Khan says, comma, why makes how easier. So you close it, and when you don't close it and you speak it in indirect, so you are using it without quotes. So as Imran Khan has written, Naeem Khan says, comma, why makes how easier. Double comma closed, full stop. Now write the same in indirect speech. Naeem Khan says that why makes how easier. Why makes, not make. As subject it is makes. He goes, I go. Why is like he, she, it. Why is like he, she, it. So here we do not change the tense because it is says, it is not said. If it was said, S-A-I-D, Naeem Khan said that why makes how easier. Again you will, because it is a proverb, it is a quotation, so you do not change the tense. But if it is something normal,
So then we use the tense. We change the tense. Naeem Khan said that yesterday I was reading a book. Naeem Khan said, double comma, yesterday I read a book. So you have to keep in mind here the structure and the tense. You have to understand these 2 points, structure and tense. How the structure of the sentence changes and how the tense changes. Now the meaning of this quotation is that why makes how easier. Why I am attending this class. Why I am doing CSS. So when you have answer to this question, the how becomes easier. जब हमें why का जवाब आता हो तो how जो है वो आसान हो जाता है. मैं स्टडी क्यों करूं, मैं मेहनत क्यों करूं, मैं CSS की तैयारी क्यों करूं, तो फिर कैसा जो है वो आसान हो जाता है. As yesterday in the LPCS class I told you that you should make your ambition your need, so then it will become for you easy to do things. अब एम ही लगे है, आपको कोई वजह नहीं पता, आपका कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई नीड नहीं है, बस ऐसे लगे होते हैं तो बंदा थक जाता है. Now we have to see that how you change the say and said, and also you change structure of the sentence in direct and indirect speech. So I have given you notes on direct and indirect. So why we use direct and indirect? जब आपको why का पता हो तो फिर how आसान हो जाता है. So sometimes we quote exactly the words of the person. जो कुछ उसने कहा है तो हम उसको exactly लिखते हैं, उसको कामों में बंद करते हैं, कोट अनकोट करते हैं. कभी आपने किसी को स्पीच करते हुए सुना है, आप खुद तो स्पीच करते नहीं हैं, सेफ टू में स्पीच करते जाए, डेली सेफ टू में आए और किसी भी टॉपिक पे स्पीच करें, आपको बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगा. सेफ टू में डेली जो है किसी टॉपिक पे स्पीच करें, मुझे टेक करें कि आज मैंने इस टॉपिक पे स्पीच किया, मैंने लेक्चर दिया. तो अगर आपने किसी को स्पीच करते हुए सुना है तो वो बंदा जो है कहता है कोट अनकोट, कोट अनकोट QUOTE. इसका मतलब ये है कि मैं किसी और के अल्फाज बोल रहा हूँ. तो अनकोट का मतलब ये है कि मैंने अब उसके अल्फाज ख़त्म किए और अब अपने अल्फाज जो है वो बोल रहा हूँ. तो जब आप उसके अल्फाज बोलते हैं सो दैट इज डायरेक्ट स्पीच. जब आप उसके अल्फाज की सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं जर्नलिस्ट की तरह, सो देन दैट इज indirect speech. So I have given you notes, and in advanced writing we use both direct and indirect, but indirect is more academic while direct is more personal. जब हम एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो है हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच. और जब हम पर्सनल राइटिंग करते हैं या हमें ये शौक़ होता है कि हम उस बंदे के एग्जैक्ट अल्फाज बोले, उसमें कोई चेंज ना हो, रिपोर्टिंग ना हो, तो फिर हम डायरेक्ट स्पीच जो है वो यूज़ करते हैं. So there are many occasions in which we need to describe an event or action that happened, and very often that includes repeating what someone said. Should we repeat or we should report? It is a basic question. Basic question क्या है? Quote, QUOTE. रहमान कोट का स्पेलिंग क्या है? QUOTE. यहाँ से कोटेशन निकला है. कोटेशन, कौन, गोल्डन कोटेशंस, अक़वाली ज़रीन. So we have two options, either to repeat or to report. When there is an event
or something happens, so there's an action or event and something happens, so we have two options. कोई वाकया है, कोई बात है, कोई एक्शन है, कोई इवेंट है, तो उसके बारे में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. ऑप्शन नंबर 1, टू रिपीट, which is direct speech. Option number 2, to report, which is indirect speech. So when there is an action or there is an event, so we have two options. One is to repeat and the other is to report. In case of repeat, we use direct speech, and in case of report, we use indirect speech. So please make a comment. When there is an event or action and we are talking about it, there are two options. Number 1, to repeat, it is called direct speech. Number 2, to report, that is called indirect speech. जब कोई वाकया होता है, कोई बात होती है, कोई एक्शन होता है और उसके बारे में हम बात करते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. एक जो है हम उसको रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, जो उसने कहा है तो उसी को हम रिपीट करते हैं. और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसको रिपोर्ट करते हैं, उसके बारे में एक रिपोर्टिंग बनाते हैं. Such occasions can include a social situation as well as in a work email or presentation. In order to describe what people said, there are two different types of speech: direct speech and indirect speech, or reported speech. Indirect speech का एक और नाम है, that is called reported speech, क्योंकि इसमें हम रिपोर्टिंग करते हैं. और इनको स्पीच भी कहते हैं और नरेशन भी कहते हैं. They are the same things. So number 1 is direct speech. When we want to describe what someone said, one option is to use direct speech. We use direct speech when we simply repeat what someone says, putting the phrase between speech marks or quotation marks. ये जो दो डबल काम आपको नजर आते हैं, इसको स्पीच मार्क्स भी कहते हैं और कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं. He came in and said, I am really hungry. वो अंदर आया और उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है. तो अगर मैं डायरेक्ट स्पीच कहता हूं तो मैं क्या कहता हूं? He came in and said, comma, double comma, I am really hungry. Double comma closed, full stop. He came in and said, I am really hungry. तो इसके मैं डबल कामों में लिखता हूं. Please write this example. I am reading it from one of the source in the notes that I have given you. इमरान खान, he came in and said, डबल कामे जरूरी है. ठीक है, डबल कामे में इसको आपने बंद करना है क्योंकि ये उसके अल्फाज है. ये डबल कामे जो आपको नजर आते हैं, कोटेशन मार्क्स या स्पीच मार्क्स इसको कहते हैं, इसका मतलब एक बड़ा ब्रैकेट है. इस ब्रैकेट में आप उसके वर्ड्स को यूज करते हैं. It is very common to see direct speech used in books or in a newspaper article. For example, the local member of parliament said, comma, we plan to make this city a safer place for everyone. Please write this. The local MP said, comma, now उसके exact अल्फाज लिखे, we plan to make this city a safer place for everyone. Write it quickly. Be smart, intelligent people. Now write the second example in direct speech. The local MP means member of parliament. The local MP said,
comma, double marks. We plan to make the city a safer place for everyone. Double quotes closed. As you can see, with direct speech, it is common to use the verb to say, said in the past, but you can also find verbs used to indicate direct speech such as ask, reply, and shout. For example, when she opened the door, comma, I asked, comma, have you seen him? Now we use the word said. हम said भी लिखते हैं, लेकिन we can also say ask, reply or shout. ये भी हो सकते हैं. मतलब he said की जगह हम कह सकते हैं he shouted, or he asked, or he replied. For example, when she opened the door, comma, I asked, have you seen my friend? Have you seen my friend जो है इसको आपने डबल कोट्स में बंद करना है. Have you seen my friend? She replied, no, I haven't seen him since lunchtime. No, I haven't seen, इसको आपने डबल कोट्स में बंद करना है. The boss was angry and shouted, comma, अब बॉस के अल्फाज क्या थे? Why isn't he here? He has not finished that report yet. तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये सारे डायरेक्ट स्पीच के हैं. When she opened the door, comma, I asked, comma, double quotes, have you seen him? Yeah, have you seen my friend? Double quotes closed. She replied. उसने जवाब दिया, तो उसके जवाब के अल्फाज क्या थे? No, I haven't seen him since lunch time. उसके अल्फाज को मैंने बंद किए कोट्स में. The boss was angry and shouted. वो एंग्री था और उसने चीखा. तो जो उसने चीखा तो उसके अल्फाज क्या थे? ये थे. उसको हमने कोट्स में बंद किए हैं. Why isn't he here? Sign of interrogation. He has not finished that report yet. Sign of exclamation and double quotes. ये मिसालें मैं अपने नोट्स से आपको दे रहा हूँ. नोट्स में मैंने जो वॉल स्ट्रीट का आपको लिंक दिया था वहां से मैं पढ़ रहा हूँ. तो इन एग्जाम्पल्स को आप दोबारा वहां पढ़ लीजिए. When we want to report what someone said without speech marks and without necessarily using exactly the same words, we can use indirect speech, also called reported speech. For example, direct speech, we are quite cold in here. Indirect speech, they say that they are cold. अभी जो वॉल स्ट्रीट का वेबसाइट मैंने आपको दिया था तो ये बिल्कुल अंग्रेज़ों का अपना लिखा हुआ है, तो इस वजह से उसकी लैंग्वेज जो है अंग्रेज़ों की तरह है. अब डायरेक्ट स्पीच में मैं क्या कहता हूँ? They said, double comma, we are quite cold in here. We are quite cold in here. तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? They say that they are cold. क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो इसमें टेंस चेंज नहीं होता. When we report that someone says in the present simple as in the above sentence, we normally don't change the tense. We simply change the subject. However,
When we report things in the past, we usually change the tense by moving it one step back. For example, the following sentence, the present simple becomes the past simple in indirect speech. I have new car. He said he had a new car. अब डायरेक्ट स्पीच ये है, he said, comma, double comma, I have a new car. He said, डायरेक्ट स्पीच में है, I have a new car. अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, इसमें मैं टेंस चेंज करूंगा. He said he had a new car. Sometimes we use that also. He said that he had a new car. लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में जरूरी का that भी इसमें लगाए. All the other tenses follow similar change in indirect speech. Here is an example for all the main tenses. जितने में main tenses है, जो बड़ी बड़ी टेंसेस हैं, तो उसकी एग्जांपल्स इन्होंने दी है, और ये एग्जांपल्स मैंने आपको आज के नोट्स में ऑलरेडी दी हुई है. फॉर एग्जांपल, सिंपल प्रेजेंट, ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर. ही सेड ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर. आई लिव क्या बनेगा, पास्ट टेंस बनेगा. ही लिव्ड. He said, I am going out. He said that he was going out. तो am going बन जाएगा was going. He said, I have finished. He said, he had finished. Have जो है वो had बन जाएगा. He said, I have been studying a lot. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होगा, he said he had been studying a lot. have been जो है वो चेंज होगा had been में. He said I arrived before you. He said he had arrived before you. इसमें जो है एक स्टेप जो है आप आगे जाते हैं, प्रेजेंट से आप पास्ट में जाते हैं, और अगर वो पास्ट है तो फिर पास्ट से मजीद पास्ट में आप जाते हैं. अगर वो अराइव्ड है तो हैड अराइव्ड बन जाएगा. अगर वो सिंपल अराइव है तो फिर वो अराइव्ड बन जाएगा. अगर वो एम गोइंग है तो वो वाज गोइंग बन जाएगा. अगर वो हैव बीन है तो वो हैड बीन बन जाएगा. एक टेंस जो है वो आगे चले जाते हैं. इसमें उन्होंने कहा कि एक स्टेप फॉरवर्ड चले जाते हैं, तो एक ही बात है. हाँ, इसने कहा है स्टेप बैक, क्योंकि अंग्रेजी में जो है वो पास्ट, ज़्यादातर इंग्लिश का जो टेंसेस है वो पास्ट से शुरू होते हैं तो वो पीछे आते हैं. लेकिन सिंपल बात ये है कि पास्ट से प्रेजेंट से पास्ट बनता है, और जो सिंपल पास्ट है तो उससे वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है. तो आप सिंपल ये याद रखिए कि आपने एक स्टेप आगे जाना है. He said, I had already left. He said he had already left. अब चूंकि had के आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है. had के आगे जो है वो कुछ नहीं है. मसलन एम जो है वो वाज बनता है, ठीक है, और हैव जो है वो हैड बनता है. लीव्ड जो है वो हैड लीव्ड बन जाता है. तो जब डायरेक्ट स्पीच भी हैड में होता है तो फिर तो हैड के आगे तो कुछ है ही नहीं.
तो हेड फिर चेंज नहीं होगा. देयर विल बी नो चेंज इन हेड. तो जब हेड होगा दोनों टेंसेस में, दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो हेड जो है वो अपनी जगह पे रह जाएगा. He said, I shall be there at 2 p.m. तो shall will जो है ये would में चेंज होगा. He said he would be there at 2 p.m. He said I am going to call him. He said I was going to call him. तो जहां am होगा तो वो एम जो है वो was में चेंज होगा. The same rule of moving the tenses or step back also applies to modal verbs. MODAL, ये जो can है, could है, इसको modal कहते हैं. So she said I can swim. She said she could swim. Can जो है वो could बनेगा. Must जो है वो had बनेगा. मस्ट किस में चेंज होगा? हेड में. में जो है वो माइट में चेंज होगा. शल जो है वो शुड में चेंज होगा. तो ये जो है आपका टेंसेस का चेंज है. सो प्लीज नाउ आई गिव यू 5 minutes टू प्रैक्टिस, देन आई विल कंटिन्यू दिस क्लास. आई विल टेक माई टी. तो अभी ये बताए कि आप जो है 2-3 एग्जाम्पल डायरेक्ट में लिखें, सिंपल डायरेक्ट. ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक. तो इस तरह की जुमले बनाए और उसको आगे चेंज करें, उसको पुश करें. सिंपल प्रेजेंट से शुरू करें. सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, परफेक्ट पास्ट, और फिर कैन, कुड, शल, विल. तो ये टेंसेस खुद बनाए फिर उसको चेंज करें ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए. हरिया. सिंपल प्रेजेंट में टेंस बनाए, पास्ट में बनाए और उसको आगे पुश करें, चेंज करें. He said, जरकून साही कहती है I am reading book. एक बुक होता है. He told that he was reading a book. सही है. आप told भी कह सकते हैं, इसका आगे इसमें लेसन में है said भी कह सकते हैं. और कोई मिसाल दे दो, अपने दिमाग पे जोर लगाओ. नहीं, ये अपने इमरान खान बहुत आपका दिमाग काम नहीं कर रहा. डबल काम है तो पहले लगाओ या फिर डायरेक्ट में लिखो. He said that I will go to college. इस तरह नहीं होता. आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिस कर दिया. इमरान खान आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तुम जल्दबाज हो. बस जल्दबाजी में काम करते हो, जान छोड़ाते हो. आराम से. आज मैंने एक पोस्ट किया था कि आप लोगों ने जानवर की तरह काम नहीं करना. जानवर बगैर सोचे समझे काम करता है. इंसान जो है थोड़ा सोच के काम करता है, मेमोरी को यूज करता है. He said, I take tea. He said that he took tea. He said, I have done my work.
She told that she had done. हाँ, have जो है वो had बन जाएगा, बिल्कुल सही है. He said I am driving fast. He said that he was driving fast. सही है. Yahya Khan. He said he played cricket. He said that he played cricket. नहीं, did play नहीं है. अपनी तरफ से टेंस मत बनाओ. did play क्या होता है? वो कभी कभी हम did play यूज करते हैं जब हम जोर डालते हैं. He did come, he did play. लेकिन वो बहुत रेयर यूज है. जब आपके पास played मौजूद है तो did play क्या होता है? He said I have read a book. He said he had read a book. बिल्कुल सही है. इस तरह की प्रैक्टिस किया करें. ये जो मैंने आपको नोट्स दिए ना उसको भी करें, उसको भी प्रैक्टिस करें. और उसमें मैंने जो ये वॉल स्ट्रीट का आर्टिकल दिया है तो उसको भी पढ़ें. Using say or tell. As an alternative to using say, we can also use tell, told in the past in reported speech. But in this case, you need to add the object pronoun. For example, he told me he was going to call him. They told her, you told us. अब ये बड़ा जरूरी है कि जब आप said की जगह tell यूज करते हैं, told यूज करते हैं, तो फिर इसमें आपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना होगा. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है I, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है me. He told, किसको कहा उसने? He told me, मुझे कहा. मुझे जो है इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं. He told her, he told us. तो her, us, me ये जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है. I am seeing my brother tomorrow. अब tomorrow जो है ये चेंज होगा the following day पे. जो टाइम वाले अल्फाज है वो चेंज हो जाते हैं. मसलन I am seeing my brother tomorrow. मैं अपना ब्रदर कल देख रहा हूं तो इसको कैसे चेंज होगा? She said she was seeing her brother the following day. So tomorrow जो है वो the following day में चेंज होगा. Yesterday किस में चेंज होगा? Anybody? Tomorrow चेंज होगा the following day में. Yesterday किस में चेंज होगा? Yesterday चेंज होगा the day before yesterday. The day before yesterday. Previous day भी कह सकते हैं. Previous day भी ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है? The day before yesterday. This afternoon किस में चेंज होगा? This afternoon चेंज होगा that afternoon में. Last week चेंज होगा the previous week में. जो imperative sentences होते हैं, जो questions होते हैं, questions, तो question में if आता है. if do they live here? डायरेक्ट में do they live here, तो इसमें हम if लगाएंगे. इनडायरेक्ट में if they live here, if they lived here.
if they lived here. if क्वेश्चन में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है उसमें if लगेगा. जहां where what टाइप अल्फाज हो, where do they live, तो उसमें फिर if नहीं आएगा, उसमें फिर टेंस चेंज होगा, where they lived. जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, इम्पेरेटिव का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स वगैरह. ठीक है. कॉल मी बैक लेटर. So when you give someone an order, you use the imperative sentence, which means using just the verb without a subject. जब आप किसी को कहते हैं स्टॉप, तो ये imperative है. तो इसमें हम सब्जेक्ट इसमें नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल में से कॉल मी बैक. ठीक है. हैव अ सीट, सेट डाउन, डोंट डू दैट. तो इसमें फिर हम टोल्ड लगाएंगे और इन्फिनिटिव लगाएंगे. सो प्लीज मेक अ कमेंट. इम्पेरेटिव नीड्स इन्फिनिटिव in indirect speech. Imperative needs infinitive. Imperative needs infinitive. इम्पेरेटिव का मतलब है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डू, सेट. इन्फिनिटिव का मतलब है द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब, लाइक टू गो, टू सेट, द बेसिक फॉर्म. तो इम्पेरेटिव के लिए जरूरत है इन्फिनिटिव के लिए. मसलन कॉल मी बैक लेटर, मुझे बाद में कॉल करो, तो ये इम्पेरेटिव है. तो इस इम्पेरेटिव को हम चेंज करेंगे इन्फिनिटिव में. टू गो, टू सेट, टू कॉल, ये इन्फिनिटिव है. सो यू टोल्ड मी टू कॉल यू बैक लेटर. टू कॉल मी, ये इम्पेरेटिव है. टू कॉल, ये टीओ, टू कॉल, ये इन्फिनिटिव है. ओके. हैव अ सीट, तशरीफ रखिए, हैव अ सीट, ये इम्पेरेटिव है. तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? इन्फिनिटिव. ही टोल्ड मी टू हैव अ सीट. तो ये तकरीबन हमने तमाम चीजों को टच किया, लेकिन सिर्फ हमने टच किया. तो अभी आपने ये करना है कि नोट्स को दोबारा पढ़ना है. नोट्स में मैंने आपको 2 लिंक दिए हैं, उन दोनों लिंक को दोबारा पढ़े. उसमें से एक लिंक ये था जहाँ से मैं पढ़ रहा था, वॉल स्ट्रीट वाला. तो उस लिंक को आप दोबारा पढ़ोगे ना, आपको ज़्यादा समझ आएगी, ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें से हम गो थ्रू हो गए. अब चूँकि 45 मिनट्स हो गए, 45 मिनट हो गए क्लास की, तो अब मज़ीद मैं जारी नहीं रखूँगा. लेकिन आगे आपके पास 24 घंटे हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे मज़ीद प्रैक्टिस करें. जो आपका वीकली टेस्ट होगा, तो उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए और भी दिया जाएगा, और आप ख़ुद भी अपना प्रैक्टिस करें. एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश जो हमारा टेक्स्ट बुक है, उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है. और रेन एंड मार्टिन जो है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है. तो आज अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ोगे ना, वैसे पढ़ो उसको, मज़ा आएगा आपको, क्योंकि हमने 45 मिनट डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया है, क्वेश्चन किया है. आई आस्क अ क्वेश्चन यस्टरडे, तो आप नईम खान जो है सारे काम छोड़ के अब्दुल गफ्फार साहब का क्वेश्चन जो ढूंढ लेगा कि यस्टरडे इसने कौन सा क्वेश्चन किया था.
तो अब्दुल गफ्फार साहब अगर ये मेहरबानी करे कि वो क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करे, तो नईम खान जो है वो इस मुसीबत से बच जाएगा कि वो अभी अपने 50,000 कमेंट्स में ढूंढेगा कि अब्दुल गफ्फार साहब ने कहाँ क्वेश्चन किया था। तो ये आपने अभी क्वेश्चन कर दिया, तो मैं आपको जवाब देता हूँ। अनीला, थैंक यू फॉर द रिकैपिचुलेशन। और ये रिकैपिचुलेशन आपको नोट्स डिटेल में मिलेंगे। So I have the following two major problems in my studies: the problem of prioritization, the problem of self-satisfaction. So usually I do not prioritize the material and books which to study on daily basis. The material provided by you exploring the world of English and Northern, I have to approach to my multiple sources for any single topic and even for studying. अच्छा, इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि you have to write 10 paragraphs. You have to write 10 paragraphs on each syllabus topic in 30 paragraphs on each essay topics. That is the level of satisfaction. That is the level of accomplishment. तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सुनते जाए, पढ़ते जाए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें, ठीक है, लेकिन पढ़ते जाए, बस पढ़ते जाए। तो अगर आप 50 पेजेस पढ़ते हैं तो एक पेज इधर बैठ जाएगा और एक पेज को आप एग्जाम में लिख सकोगे। अगर आप एग्जाम में साल 2 साल है, 2-2.5 साल है, तो फिर उसका तरीका ये है कि 500 सिलेबस के टॉपिक्स है और हर टॉपिक पे आपने 10 पैराग्राफ लिखने हैं। इसे के अलावा इसे जो है उसमें 30 पैराग्राफ होते हैं, क्योंकि उसका एक पेपर होता है, एक क्वेश्चन होता है 3 घंटे का। बाकी पेपरों में एमसीक्यू के अलावा आपको यूजुअली 4 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको 10 पैराग्राफ लिखने होते हैं। तो जब आप मेमोरी से, मसलन हम जनरल साइंस का क्लासेस आजकल कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। उसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज ज़्यादा होते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स हम शुरू करेंगे या पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह, तो उसमें अगर आप सिलेबस के हर टॉपिक पे 10 पैराग्राफ लिख सकते हैं तो आपका काम हो गया, आपका सेटिस्फैक्शन जो है हो गया, और आपने प्रायोरिटी दी एक सिलेबस को और उस सिलेबस को आपने कवर किया। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि वो रीडिंग करते थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इवैल्यूएशन कराते हैं, और एग्जाम जब आता है तो उनके लाशऊर में, अनकॉन्शियस में इतना नॉलेज जमा होता है कि फिर वो उसको 5 क्वेश्चंस वो कर सकते हैं या 30 पैराग्राफ जो है वो लिख सकते हैं। तो इसका होलिस्टिक तरीका ये है कि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें, रीडिंग करें, और कभी कभी अपने आप को आजमाए कि क्या कश्मीर पे मैं 10 पैराग्राफ अपने मेमोरी से लिख सकता हूं। अगर आपने लिख लिए, बस आपका कश्मीर कवर हो गया। आपको अब सिर्फ लेटेस्ट न्यूज चाहिए कि कश्मीर पे कोई नई चीज तो नहीं आई, बस बाकी आपका टॉपिक हो गया। इसमें ग्लोबल वार्मिंग है, IR है, पॉलिटिकल साइंस है। तो अगर आप सिलेबस के किसी भी टॉपिक पे 10 पैराग्राफ लिख सकते हैं तो आपने प्रायोरिटाइज भी किया और आपने अपने आप को सेटिस्फाई भी किया। लेकिन अगर हर टॉपिक पे आपको 10 पैराग्राफ लिखना मुश्किल है तो किसी टॉपिक पे लिखा करें, बाकी आप रीडिंग करते जाए, लिसनिंग करते जाए। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर आपका वो सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बन जाता है। लेकिन मैं आपके सामने एक CSP बैठा हूँ जिसने CSS कर गया है, PCS भी किया है, PMS भी किया है, दुनिया का हर एग्जाम पास किया है। लेकिन हर एग्जाम के नाइट पे
मुझे ये फील होता था कि मुझे कुछ नहीं आता, एक लफ्ज भी नहीं आता। तो थोड़ा सा मैंने माइंड कंट्रोल किया था, सो में जाता था, खाना शाना खा लेता था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, और ये देखिए बस देखा जाएगा। तो जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठता था फिर वो चीज़ें आप पे नाजिल होती है, आप पे जो है ना वो चीज़ें आपकी तरफ आ जाती है, अगर आपने पढ़ा है, मेहनत की है। तो अगर बिल्कुल खाली खोपड़ी है तो उधर से फिर कुछ नहीं निकलेगा। तो सेटिस्फेक्शन जो है वो लर्निंग में नहीं है। सुकरात जैसा बंदा जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो और कौन सेटिस्फाइड होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा समंदर है, इस समंदर में आप सिर्फ गोते लगा सकते हैं लेकिन पूरे समंदर को काबू नहीं कर सकते। सो आई होप यू गॉट द मैसेज। शॉर्टकट क्या है? हर टॉपिक पे 10 पैराग्राफ मेमोरी से लिखना, कम से कम एक पैराग्राफ बंदा, एक टॉपिक पे बंदा 10 पैराग्राफ दिन में लिखे, बस। बाकी रीडिंग करें, लिसनिंग करें। ऑल द बेस्ट। और तो प्रायोरिटी ये है कि आपने 3 दिन एक सब्जेक्ट को देने हैं, 3 दिन के बाद उस सब्जेक्ट की किताबें साइड पर रखने हैं, दूसरे सब्जेक्ट के लाने हैं। तो 3, अगर आप CSS के हैं तो CSS में 12 सब्जेक्ट्स है, तो 12 3 34 जो है, 12 3 36 जो है, 36 दिन के बाद आपको नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट सर्कल आपका दोबारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट का आप 3 दिन देते हैं, तो 12 3 36, तो 36 दिन जो है, 1 महीना 6 दिन में। उसके बाद फिर आप उसी सब्जेक्ट से शुरू करेंगे जो आपने स्टार्ट में शुरू किया था। तो इसी तरह 3 दिन एक अच्छा यूनिट है एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी बंदे को आ जाता है। ये डेली टाइम टेबल गलत है कि जी 12 बजे से 5 बजे मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, वो गलत है। आप 3 दिन एक सब्जेक्ट को दे दें। आजकल तो हमने सेफ में भी आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तकरीबन हफ्ता 10 दिन। अब GSA चल रहा है तो सिर्फ GSA चल रहा है, तो आप फोकस जो है वो GSA पे करें। कल परसों हमारा GSA खत्म हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे। इंग्लिश का तो जनरल है, ये तो चलता है। तो 3 दिन 1 सब्जेक्ट, 36 days all the subjects you touch for 3 days each। तो जहां आपने छोड़ा है उस सब्जेक्ट को, तो उस सब्जेक्ट को फिर 36 दिन बाद उधर से दोबारा शुरू करो, फिर 3 दिन पढ़ो, फिर किताबें रखो। मेरा स्टडी का तरीका होता था, मैं बड़ा इंजॉय करता था कि जब 3 दिन खत्म हो जाते थे तो मैं बड़ा खुशी खुशी उन किताबों को अलमारी में रखता था और अलमारी से बाकी सब्जेक्ट की किताबें निकालता था 3 दिनों के लिए। क्योंकि 3 दिन के बाद बंदा बोर हो जाता है, थक जाता है वही चीज़ पढ़ पढ़ के, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, बंदे का मूड भी चेंज हो जाता है। जब बंदा थकता है तो उसको छोड़ता है, नया लाते हैं, और इसी तरह आप तमाम सब्जेक्ट्स को कवर कर लेते हैं। वरना आप एक ही सब्जेक्ट में लगे रहते हैं तो फिर भी आपका पूरा साल गुजर जाएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट आपका कवर नहीं होगा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ जनरल साइंस।